Hello everyone, welcome to Research Academy. In this video, we are going to talk about a very important and interesting topic. How you can earn while you are learning as a law student or after your LLB also. So it's a very interesting topic. Please watch till the very end because I'm going to talk about four easy ways you can earn while you are learning. And also, I'm going to talk about how you can start in your LLB days also. So this will cover in your LLB days as a law student how you can earn or and also after your LLB days you can also continue your earning more than what you are doing. So both the aspect will be covered. So let's get started about this particular video. So, as you know, there are various careers available for a law student, right? And as a law student, someone is pursuing LLM, someone is going for judiciary exams, someone is going for litigation, someone is going for corporate career. But whatever you are choosing, more or less, there is a buffer period. So, what do you mean by buffer period, sir? Buffer period in the sense, what I mean to say, कि whatever आप कोई भी एक करियर चूज करोगे उसके बाद एक 2-3 साल का मोर और लेस एक स्ट्रगल पीरियड रहता है. एक्सेप्शनल केसेस भी है. देयर आर सम स्टूडेंट दे आर गेटिंग इनटू टियर 1 टियर 2 लॉ फर्म, अच्छा गुड कंपनी में उन लोगों को एज ए लॉ ऑफिसर अगर मौका मिल जाता है, दोस थिंग्स आर देयर. बट मैक्सिमम लॉ स्टूडेंट्स दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट, दे हैव टू ग्राइंड आफ्टर देयर एलएलबी. आई हैव आल्सो डन इट एंड एवरीवन हैज डन इट, एवरीवन इज गोइंग थ्रू इट, whoever have passed the LLB more or less. Now उस बफर पीरियड में बहुत सारा चीज दिमाग में चलता है कि हाउ आई कैन एस्टेब्लिश माई सेल्फ, मुझे क्या करना है जिसमें मेरे अर्निंग बढ़ेंगे और मुझे इधर जुडिशरी क्रैक करना है या एडवोकेसी में मुझे मेरा झंडा गाड़ना है. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर गोइंग ऑन इन माय माइंड एंड that was going on in my mind and going on in anyone's mind who were after LLB or in the fourth year, third year, fourth year. These things are there in their mind. And I hope you can relate to this thing, right? So in this buffer period or in this struggle period, and every law student, they know it कि I have to grind. So this video is going to tell you how you can start doing the things, okay, from your LLB days, so that this buffer period you can survive it smoothly. That's very important. प्रॉब्लम आएगा बट प्रॉब्लम को कैसे आप बेटर वे हैंडल कर सकते हो, इस वीडियो उसी के बारे में बताएगा. ठीक है. सो देयर आर 4 ways you can handle, you can just smoothly wail through this struggle period. Now first and foremost, how you can smoothly wail, because सपोज जुडिशियरी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको भी पता है कि इट विल टेक 2 years 3 years डाउन द टाइम. ओके, सो एट दैट टाइम इफ यू हैव सम काइंड ऑफ बैकअप और यू आर अर्निंग सम मनी, इट्स नॉट दैट यू आर अर्निंग 30,000 40,000 50,000, but at least you are earning 5,000 10,000 15,000. so there is some kind of cushion or there's some kind of confidence in your mind that you are earning, or you don't need to go back to your parents and ask for money. You know what it felt like after your LLB days. Your parents have invested a lot of money, बहुत पैसा दे चुके कॉलेज एजुकेशन के बाद. आपका भी खुद का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डाउट, सेल्फ एस्टीम वाली बात आ जाती है. आई कैन रिलेट टू इट बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू द सेम फेज कि आप जाओगे, आप जाके बात करोगे, आप पैसे मांगोगे दोबारा. इट्स नथिंग सेम डेफिनेटली. इफ you as a law student or any student, we need to go to our parents and ask for the money, because that is the best available resource to us, rather than asking money from other third party. Going and asking money from the parents is the best, and you should do it. There is no denying the fact, and you should not be ashamed. But nonetheless, there is another option. Why not? You can earn yourself, because you are well qualified to earn. You just need to be skilled enough that you can earn, right? So that I am talking about. Now there are 4 ways you can just basically cater to your skill and earn in this buffer period. Now first and foremost way that you can earn is writing. Okay, now sir writing से कैसे कर सकते हैं? writing से आप कैसे कर सकते हो? Basically if you are a law student, then you probably writing articles, you probably writing blogs and everything, but side by side you can write for different organization. Like मैं example दे रहा हूँ आपको. Last 4-5 साल में hundreds of content creators have worked with Jurisearch, freelancers. ठीक है, तो
एंड दे अर्न अराउंड 3,000 to 20,000 के बीच में वो लोग, डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स एंड देयर एफिशिएंसी, दे आर अर्निंग, दे हैव अर्न. सो व्हाट आई मीन टू से कि अगर आपके पास स्किल्स है, आप अच्छा लिखते हो, और ऐसा नहीं कि ये बहुत रॉकेट साइंस है, बिकॉज यू एज ए लॉ स्टूडेंट यू नो यू आर राइटिंग इट फॉर सो लॉन्ग एंड यू कैन राइट इट. ठीक है, तो यू कैन बी केटरिंग दिस सर्विस और यू कैन केटरिंग दिस स्किल एज ए फ्रीलांसर टू एनी ऑफ द रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन. अभी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रीलांसर्स ढूंढते हैं, फ्रीलांसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, और आप आपके सर्विस या आपके जो राइटिंग स्किल है उन लोगों को प्रोवाइड करके आप उससे पैसा कमा सकते हो. ठीक है, फर्स्ट वन. नाउ सेकंड थिंग इज दैट द सेकंड वे इज द टीचिंग. ठीक है, बहुत स्टूडेंट को जुडिशियरी एग्जाम करना है, या एडवोकेट है, लिटिगेशन में जा रहे हैं, और एनी अदर कॉर्पोरेट या other aspect is also there, but for them there is another way that you can do, that is teaching. Now sir, teaching में कैसे पढ़ा सकते हैं? देखो, teaching में always you can go for, अभी तो there are a lot of social media में आप कोई भी मीडियम से आप पढ़ा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड उससे क्या होगा डेफिनेटली कि आपका जो बेसिक से दोबारा रिवीजन होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पस और फॉर योर करियर पर्पस. एंड साइड बाय साइड योर अदर थिंग इज ऑल्सो गेटिंग सॉर्टेड आउट. अदर थिंग इन द सेंस कि आपका वहां से अगर आप किसी को पढ़ा भी रहे हो, और यहाँ पर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है लाइक जुडिशियरी या बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पर आप जाके पढ़ा सकते हो, एंड यू विल गेट पेड फॉर दैट, राइट. तो यहाँ पर भी आपका एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है कि एलएलबी के बाद भी आप कर सकते हो, एलएलएम के टाइम भी कर सकते हो, आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन करो तब भी आप कर सकते हो. इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन हैव एंड यू कैन डू फॉर इट. एंड आई वांट ऑल ऑफ यू, क्योंकि फालतू आप सिर्फ जुडिशरी का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड ऑल द थिंग्स आर गोइंग, तो आप उसी के साइड बाय साइड इफ यू आर गोइंग एंड अर्निंग समथिंग, तो दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज. आपको शायद 6 महीने 1 साल और एक क्वेश्चन देगा. शायद आपको पता है कि 2 अटेम्प्ट दे चुका हूं मैं, और एक बार अटेम्प्ट दूंगा तो आई माइट क्रैक इट. यू नो इट बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट योर प्रिपरेशन, राइट. तो आपको पता है कि और 1 साल में अगर कर लेता हूं तो मैं शायद क्रैक कर लूंगा. देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी. मुझे पता है कि कैसे क्रैक करना है ना. उस टाइम सर आपको घर वाले बोल रहे हैं कि तू बेटा इतने साल से पढ़ रहा है, ये कर रहा है, तू अभी पैसा नहीं कमा रहा है, कब कमाएगा, ऑल दोस थिंग्स दे माइट बी टॉकिंग टू यू. ठीक है, आपके रिलेटिव भी बोल सकते हैं. दैट टाइम अगर आप एटलीस्ट यू आर नॉट वेल ऑफ बट यू आर अर्निंग 10,000 5,000 10,000, तो यू नो यू आर जस्ट स्पेंडिंग एज पर योर रिक्वायरमेंट. आप 10,000 में आप रह सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं रह सकते हो, राइट. तो आप खर्चा तो आपका चला सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आप जुडिशरी क्रैक करोगे, या अच्छा टियर 1 लॉ फर्म में आप काम करोगे, या अच्छा लिटिगेशन में आप आपका ग्राइंडिंग के बाद अच्छा खुद का पकड़ बना लिए. सो दैट थिंग विल टेक टाइम, बट बफर पीरियड में आपका काम आ जाएगा. दैट आई एम टॉकिंग अबाउट टू सर्वाइव इन द बफर पीरियड वेरी स्मूथली. नाउ थर्ड थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्रिएटिंग लॉ मीम. ना आप मुझे बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो यार, लॉ मीम मतलब मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा स्टेटस है समथिंग, अब लॉ मीम बनाएंगे सर. ना देखो, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, व्हेन आई स्टार्टेड जुडिशरी आई आल्सो क्रिएटेड लॉ मीम. यस, यू हर्ड इट राइट, आई आल्सो क्रिएटेड लॉ मीम एंड आई रियली लाइक डूइंग इट. आई रियली लाइक डूइंग इट. अभी मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर स्टफ, बट आई रियली लाइक डूइंग एंड क्रिएटिंग लॉ मीम्स. नाउ अभी मैं आज भी लॉ मीम क्रिएट करता हूं, ऐसा नहीं है, बट आप अगर पूछोगे लॉ मीम बनाना है, आई कैन डू इट बिकॉज I don't segregate this a good work or bad work. I never segregate that. ठीक है, अगर मुझे कुछ चीज करना है तो I will do it. ठीक है. Now लॉ मीम से अभी भी बहुत सारे पेजेस है जे दे आर मोनेटाइजिंग इट, उससे भी आप पैसा कमा सकते हो. एंड इट्स अ फन पार्ट, इट्स एंटरटेनिंग, इट्स अ न्यू पार्ट. आप जाके आपको भी पता नहीं क्या होने वाला है, आप कोई भी मीम बनाओगे अच्छे से लॉ स्टूडेंट को लिए, लीगल कम्युनिटी के लिए, एंड यू आर सर्विंग द एंटरटेनमेंट पार्ट. ठीक है, it's fine. If you are interested, you can go for it. It's a new way of expressing yourself. Okay, अच्छी बात है. आप जाओ, करो, एक्सप्रेस करो, और आप अच्छा भी कर सकते हो वहां पर, मोनेटाइजेशन भी कर सकते हो वहां पर. ठीक है. Now fifth part that I'm going to talk about, fourth part I'm going to talk about is research post in various ministries. Now research post various ministries मतलब जैसे NHRC हो गया, NCW हो गया, या आपके
Competition Commission of India. So all those different institutes, organizations, they are basically asking for different researchers. They're asking for short-term legal researcher, even Supreme Court clerk. Okay, so this particular posts are short-term in nature. 2 to 3 years, salary would be around 30,000 to 50,000 के बीच में, and you will be doing some low entry level work like आप किसी डेटा को आप अरेंज कर रहे हो या पुटिंग एंट्री इनटू डिफरेंट एप्लीकेशंस या सबमिशंस या समथिंग लाइक दैट। कोई भी एनएचआरसी में कंप्लेंट फाइल हुए तो आप उसका एंट्री करोगे, कितना फाइल हुआ, ब्रीफ करना एंड ऑल दो स्टफ, मतलब पूरा एंट्री लेवल का काम जो एक जूनियर का होता है आप वो करोगे। सो दिस वर्क इज ऑल्सो कंसिस्टिंग ऑफ रिसर्चर। इसके लिए आपको सेपरेटली एग्जाम देना पड़ता है और आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, बट इट इज अनदर 2 years 3 years शॉर्ट टर्म वर्क एंड इट्स नॉट रिन्यूएबल। इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू हायर यू फॉर द another post or something like this। अगर आपका खत्म हो जाता है इट्स डन देयर, बट एटलीस्ट यू विल गेट योर पोर्टफोलियो डन। आप अगर कोई बोलोगे कि यू हैव वर्कड 2 years in NHRC, that will create a better image of your CV, right? कि आप 2 साल NHRC में काम किए थे या 2 साल सुप्रीम कोर्ट के क्लर्क थे, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी handy in your CV that you have worked somewhere. That's going to be helpful for you. So these things are there. Now other very important part is that you have to understand okay, other than these 4 ways that I have talked about, there are other ways, and for that reason we are organizing a workshop, and in that workshop I am going to talk about all this aspect, how I have become self-employed and freelancing. I am just taking care of for the last 4-5 years. I am just closely monitoring all this situation. I know how it works, how it has been done, and how it's going to be done. And I'm going to talk about on this topic on 9th. Okay. So, and this workshop will be starting from the 7th. So I want all of you to get to know more about this topic, how you can monetize these things, how you can learn more, how you can do more. Just register for the workshop, and this workshop is free of cost. So don't delay, register, and I'll see you in the live session on that particular workshop day, and talking about this aspect elaborately, how you can monetize the things, how you can earn, because earning is very important, guys. You know it, why I am talking about. So register link is given below in the description. See you in the workshop. Thank you so much.